हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। ब्रीज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड, a toothbrush manufacturing company having its factory in Rajkot, Gujarat, shows a net profit of 79,50,000 after debiting and crediting of the amounts in its profit and loss account as mentioned below for the year ended 31st March 2025. Depreciation as per Companies Act 85 lakhs, a gross loss of 25 lakhs due to destruction of old machinery by fire in the factory. Though rupees 7,80,000 was received as scrap value on his old machinery on 31st August 2024, the insurance company did not admit the claim of the company on the charge of negligence. Income tax assessment of AY 23-24 was completed in September 2024 with a tax demand of 5,70,000, which included surcharge of 60,500 and a cess of 24,200. The entire sum has been duly paid during the year 24-25. Power subsidy received from central government amounting to rupees 13 lakhs. It was received with a stipulation that the same is to be adjusted in the electricity bills for the year 23-24. The subsidy received in year 24-25, it was not included in the income of the year 23-24. Interest received 7,50,000 on margin money deposited with a bank for obtaining bank guarantee to carry on the business is included as income in profit and loss account. Purchase price of raw material used for the purpose of in-house research and development is 14 lakhs, including GST of 2,75,000 on which ITC is not admissible, is debited to profit and loss account. Breeze Dental Care Private Limited paid 12 lakhs to Japa Inc. of China for online digital advertisement. Japa Inc. has no permanent establishment in India. No tax was deducted at source, nor was the equalization levy paid on the said amount. Dividend of rupees 2,50,750 was received from a foreign company in which Breeze Dental Care Private Limited holds 28% in nominal value of equity share capital of the company. An expense other than interest payment of 15 lakhs spent on earning this income. Interest of 20 lakhs relating to the year 24-25, which is settled by issuing 8% debentures of 100 each in March 2025. उसको March 2025 करना पड़ेगा. Additional info: depreciation as per Income Tax Act 1961 is 32,50,000. A new air compressor machine necessary for installing with main plant to keep the air compression as per the guidelines was purchased and installed and put to use on 1/5/2024, 74 lakhs. Another new specified air pollution control equipment was purchased for 23,45,000 on 18/6/2024. Items purchased after 30th October 2024. Lorries for transporting goods to a sales depot, 95 lakhs. Machine imported from Germany, 160 lakhs. It arrived at Kandla port on 30th March 2025 and was installed on 10/4/2025. All the other items were installed during the period ended March 31st, 2025. The total turnover of the company for the financial year 22-23 was 415 crores. You are required to compute the total income and the tax payable of Breeze Dental Care Private Limited for the year 25-26
with reasons for the treatment of each item given above, the company has not opted for section 115 BAA and BAB. Ignore the provisions of MAT. दोस्तों, बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर का कभी भी क्वेश्चन आया, देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही होगा। तो पहले तो मैं आपको एडवाइस क्या करूंगा, एकदम शांति से हर एक एडजस्टमेंट रीड करो। पहले प्रॉब्लम कहां पे आती है पता है सॉल्विंग में, कि आप लोग है ना क्वेश्चन रीड ही नहीं करते हो दोस्तों। तो एकदम शांति से पहले हर एक क्वेश्चन रीड करो। चलो अब ये क्वेश्चन जो है ये अपन सॉल्व करना अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे ये डेट चेंज कर देना, 25 कर देना। देखो, ब्रीज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड, अ टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग इट्स फैक्ट्री इन राजकोट, गुजरात, shows a net profit of 79,50,000 after debiting and crediting of the amounts in profit and loss account as mentioned below for the year ended 31st March 2025. इतना प्रॉफिट दिख रहा है कंपनी का। अब कंपनी ने ये डेप्रीसिएशन जो है एज पर कंपनीज एक्ट 85 lakhs ये डेबिट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यही डेप्रीसिएशन को पहले तो ऐड बैक करेंगे। सो ये देखो 79,50,000 से अपन ने स्टार्ट किया और जो डेप्रीसिएशन है एज पर कंपनीज एक्ट उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद अ ग्रॉस लॉस ऑफ 25 lakhs ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड मशीनरी बाय फायर इन द फैक्ट्री, though rupees 7,80,000 was received as scrap value on this old machinery on 31st August 2024. The insurance company did not admit the claim of the company on the charge of negligence. 25 लाख का मशीन डिस्ट्रॉय हो गया तो 25 लाख अपन ने डेबिट कर दिया, क्योंकि ऊपर लिखा ही है आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स। तो 25 लाख रुपया अपन ने ऐड कर दिया। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको जो भी लॉस आता है वो माइनस करने नहीं मिलेगा। और जो आपको 7,80,000 स्क्रैप वैल्यू मिला है, कहने से ये तो आपका स्क्रैप वैल्यू जो आप डेप्रीसिएशन का फॉर्मेट बनाओगे उसमें से जो लेस करते हो ना मनीज पेएबल वाला पॉइंट, उसमें आ जाएगा। तो 7,80,000 जो है ना उसको अपने को P&L के क्रेडिट साइड से भी हटाना पड़ेगा। 7,80,000 को हमें हटाना पड़ेगा। उसके बाद income tax assessment of 23-24 was completed in September 24 with a tax demand of 5,70,000 which included surcharge and cess. The entire sum is paid in a year 24-25. दोस्तों 570 अपन ने टैक्स सरचार्ज एंड सेस पे किया है। अब टैक्स सरचार्ज और सेस जो है वो तो डिसअलाउ होता है, वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। तो एज पर सेक्शन 40A2 कहना इसे वो हमें ऐड करना पड़ेगा। सो ये देखो 5,70,000 अपन ने पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दिया है, ऐड। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, पावर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू ₹13 lakh. It was received with a stipulation that the same is to be adjusted in electricity bills of year 23-24. The subsidy is received in a year 24-25. It was not included in the income of last year, that is 23-24. अब देखो जो सब्सिडी आपको मिलता है ना, सब्सिडी उस पे आपको टैक्स लगता है ऑन रिसीव बेसिस। आपको रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा तो हमने इसी साल उसको इंक्लूड किया है, तो सही किया है। अपने को लास्ट ईयर में इंक्लूड करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये देखो एज पर ICDS नंबर 7, government grant which is receivable as compensation for expenses or losses incurred in the previous financial year shall be recognized as income of the period in which it is received. Since the subsidy is received in 24-25, it would be taxable in 24-25. Since such subsidy has been credited to profit and loss account, no further adjustment is required. No further adjustment is required. चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 7,50,000
on a margin money deposited with a bank for obtaining bank guarantee to carry out business is included in the income of P&L. So बैंक से इंटरेस्ट मिला है 7,50,000 का, जो मार्जिन मनी हमने बैंक के पास रखा था फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी। बैंक गारंटी ऑब्टेन करने के लिए हमने कुछ पैसा रखा था बैंक में, तो उस पर अपने को इंटरेस्ट मिला है 7,50,000। अब दोस्तों आप याद करोगे तो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ये केस लॉ है, CIT वर्सेस के एंड कंपनी 2014 दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है कि जो भी आप मार्जिन मनी डिपॉजिट करते हो विद अ बैंक फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी, उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही टैक्सेबल होता है। कहाँ टैक्सेबल होता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो ये जो इनकम है वो बिजनेस में ही आनी चाहिए, और अपन ने बिजनेस में ही लिख दी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विथ बैंक, interest income received on funds kept as margin money for obtaining bank guarantee would be taxable under the head profits and gains of business and profession. Since such interest has already been credited to P&L account, no further adjustment is required. So इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, purchase price of raw material used for the purpose of in-house research and development is 14 lakhs including GST of 2,75,000 on which ITC is not admissible is debited to P&L account. दोस्तों आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है फॉर रिसर्च, तो वो तो अलाउड होना चाहिए, और जिस भी चीज़ का ITC नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं मिलता, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो ये देखो, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Purchase price of raw material used for the purpose of in-house research qualifies for deduction. GST on which ITC is not admissible is an expense and can be claimed as deduction under 37. As the amount has been already been debited to P&L account, no further adjustment is required. कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, ब्रीज डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड paid 12 lakhs to JAPA INC of China for online advertisement, digital advertisement. JAPA INC has no permanent establishment in India. No tax was deducted at source, nor was the equalization levy paid on the said amount. अब दोस्तों अगर आप कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट लेते हो तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, याद करो, इक्वलाइजेशन लेवी करके। इक्वलाइजेशन लेवी जो चैप्टर था कि आप जब भी पेमेंट करोगे आपको 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट के पेमेंट करना है। अगर आप 6% इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटते हो तो वो खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाता है। तो ये जो जापा लिमिटेड को 12 लाख दिया, क्या हो जाएगा वो? डिसअलाउ। ये देखो ऐड कर दिया अपन ने, पूरा का पूरा अमाउंट अपन ने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया है? डिविडेंड ऑफ 2,50,750 was received from a foreign company in which Breeze Dental Care Private Limited holds 28% in nominal value of equity share capital of the company. An expense other than interest expense of 15,000 spent on the earning of this income. अब डिविडेंड इनकम जो है वो तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होनी चाहिए, और डिविडेंड इनकम के सामने आपको सिर्फ एक ही खर्चा माइनस करने मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहली चीज तो ये 15,000 का जो खर्चा है उसको ऐड बैक कर दो, ये 15,000 ऐड बैक हो गया, और उसके बाद आपका जो डिविडेंड है 2,50,750, कहने से वो लेस हो जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि यही 2,50,750 जो है वो चला जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये देखो अदर सोर्स में इस पे टैक्स आ गया, ठीक है, और कोई खर्चा मिलेगा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑफ 20 lakhs relating to the year 24-25 which is settled by issuing 8% debentures of 100 each in March 2025. Depreciation as per the Act 1961. अच्छा पहले तो ये एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। 20 lakhs का जो इंटरेस्ट था आपने उसको सेटल कैसे किया? बाय इशूइंग डिबेंचर्स। भाई डिबेंचर दिए, इंटरेस्ट का पेमेंट थोड़ी किया है। अब इंटरेस्ट का आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यही चीज को हम अलाउ नहीं करेंगे।
interest of 20 lakhs relating to the year 24-25 which is settled by issuing 8% debentures. तो ये 43B के हिसाब से कहने से आपको पेमेंट कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, तो अब ये 20 lakhs जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एड बैक. एज पर सेक्शन 43B, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू डिबेंचर shall not be deemed to be the actual payment, hence would not be allowed as deduction. So वो अलाउड नहीं होगा, इसको हम पेमेंट कंसिडर नहीं करते कि आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं किए हुए हैं. फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 32,50,000. अब दोस्तों ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी गई है, यहां पे लिखा है डेप्रीसिएशन, तो ऐसा ही हम समझते हैं कि ये वाले असेट्स जो नीचे दिए गए ना, उस पे डेप्रीसिएशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना. अब 32,50,000 तो माइनस करने आपको मिल जाएगा, तो आप पहले तो समझो पूरा 32,50,000 यहाँ से माइनस हो गया. अब है ना, यहाँ पे जब आप 32,50,000 माइनस कर रहे हो, तो आप समझो आपने ना करंट ईयर में क्या किया है, आपने करंट ईयर में एक असेट बेचा भी है. ये असेट देखो यहाँ पे बेचा भी है और उसका 7,80,000 मिला है. तो जब अपन सोल्यूशन बना रहे ना, हम लोग सोल्यूशन बना रहे विथ एन अजम्पशन कि 7,80,000 का इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर, 32,50,000 के अंदर 7,80,000 का इफेक्ट आ चुका है. सो यहां पे लिखा है इट इज डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स है, तो इसके अंदर वो 7,80,000 जो आपको स्क्रैप वैल्यू मिला था उसका इफेक्ट आ चुका है. अगर आप ऐसा समझोगे कि 32,50,000 में 7,80,000 का इफेक्ट नहीं आया, तो इसका मतलब आपका जो भी ब्लॉक था उसमें से 7,80,000 और माइनस होना चाहिए, और 7,80,000 माइनस होता तो आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट कहने से और कम हो जाता, क्योंकि आपकी WDV 7,80,000 से कम होती, तो कितने से डेप्रीसिएशन कम हो जाता आपका, 1,17,000. कैसे, 7,80,000 का 15% कैलकुलेट करो, 1,17,000 से आपका डेप्रीसिएशन कम हो जाएगा. तो इसमें से अगर आप 1,17,000 माइनस भी करके दिखाओगे तो भी चलेगा दोस्तों. बट यस, अभी हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है विथ एन अजम्पशन कि 7,80,000 का इफेक्ट हमने दे दिया है. अगर हम 7,80,000 का इफेक्ट ना दे, मतलब क्या, अभी अब उसके ऊपर वो अगर ब्लॉक में से हमने माइनस नहीं किया हो, तो फिर आपको इधर 1,17,000 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उतने से आपका डेप्री कम हो जाएगा दोस्तों. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, पढ़ते हैं. A new air compressor machine necessary for installing with a main plant to keep the air compression as per guidelines was purchased and was installed and put to use on 1/5/2024 for 74 lakhs. 74 lakhs का जो मशीन खरीदा उस पे आपको 15% डिप्रीसिएशन मिलेगा, तो ये आप माइनस कर दो, और इसी चीज पे आपको यहाँ पे एडिशनल डिप्रीसिएशन भी मिलेगा, तो वो भी आप माइनस कर दो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एडिशनल डिप्री मिलेगा. अनदर न्यू स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वाज परचेज्ड फॉर 23,45,000 ऑन 18/6/2024. तो ये देखो 23,45,000 पे 40%, 9,38,000 एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40% रेट है, और एडिशनल डिप्रीसिएशन उस पर भी आएगा 20% के हिसाब से. लॉरीज खरीदिए उसके बाद 95 lakhs, तो उस पर आपको डिप्रीसिएशन मिल जाएगा. लॉरीज के ऊपर हाफ, लेस देन 180 डेज यूज हुआ है इसीलिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद खरीदा है. और ये वाले मशीन पे आपको नो डेप्री, क्योंकि आप जरा देखो इंस्टॉल है ना, इंस्टॉल नेक्स्ट ईयर में हुआ है, दैट इज इंस्टॉल हुआ है इन 25-26, तो इसीलिए उस पर डेप्री नहीं मिलेगा. तो अब आप अपना टोटल बिजनेस इनकम निकालोगे तो वो 137,44,750 आएगा. अदर सोर्स का इनकम ऐड करो, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया. इस पे आपको टैक्स 30% लगेगा, क्योंकि कंपनी का लास्ट टू लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 400 करोड़. मोर देन 400 करोड़ है तो 30% इस पे टैक्स आ जाएगा. 7% सरचार्ज आएगा बिकॉज इनकम इज मोर देन 1 करोड़, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा आपका 4%, और ये आपका टोटल टैक्स आ गया. नीचे उन्होंने वही पॉइंट लिखा है
कि अगर हमने 7,80,000 को एडजस्ट नहीं किया होगा तो आपका ये जो इनकम है ये वाला वो हो जाएगा 138,61,750। मतलब क्या, आपका थोड़ा सा इनकम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इनकम बढ़ जाएगा क्योंकि आपका डेप्रीसिएशन कम हो जाएगा ना, इसीलिए। तो आप अगर डिफरेंस देखोगे ये दोनों में 1,17,000 ही है, और फिर आपकी ये इनकम भी चेंज हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स भी चेंज हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब अपने को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। पहले अपन क्वेश्चन रीड करते हैं। X Limited is engaged in manufacture and sale of textile goods. Its net profit for the year ended March 2025 after debit and credit of the following items to profit and loss account is 125 lakhs. Advertisement expenditure include a sum of 1.6 lakhs paid in cash to a sister concern of a director company. The fair market value of such expenditure is 52,000. Repairs of plant and machinery include 1.8 lakhs towards replacement of worn out parts of machinery. The company used to include interest cost in valuation of its finished stock up to the year 23-24. During the year 24-25, the company changed its accounting policy to comply with the requirement of an accounting standard issued by ICAI and excluded interest cost in valuation of the finished goods. This resulted in a decrease in current year's profit by 10,70,000. An executive, Mr. Q, while on a business trip abroad, died and the company voluntarily paid gratuity to his family amounting to rupees 2 lakhs. Capital expenditure of 1.8 lakhs incurred for the purpose of promoting family planning amongst its employees debited in profit and loss account. Retrenchment compensation paid to employees of one of the unit of the company which was closed down during the year amounted to 14 lakhs. 4 lakhs being the amounts waived by the cooperative bank out of principal and 1 lakh being the amount waived by the bank on arrears of interest respectively in one-time settlement. The loan was obtained for meeting working capital requirement 4 years back. Contribution towards employees pension scheme notified by central government under section 80CCD for a sum of 3 lakhs calculated at 12% of basic salary and dearness allowance forming part of the retirement benefit payable to the employees. Mark to market loss amounting to rupees 6 lakhs in respect of unsettled derivative contract. The contract was settled in March with a gain of 1 lakh rupees. Provision for gratuity based on the actual valuation was 4 lakhs. Actual gratuity paid debited to P&L account was 2.75 lakhs. The gratuity paid to Mr. Q is debited separately and not included in the provision for gratuity of actual gratuity mentioned here. The company furnishes the following additional information relating to it. The company has obtained a loan of 4 lakh rupees from ABC Private Limited in which it holds 16% voting power. The accumulated profit of the company is 1 lakh. The company has given iPhone mobile sets to 5 distributors as incentive costing 60,000 each on 20th-10-2024 on occasion of Diwali. The accountant of the company debited the same to business promotion expenses being business expenditure and did not deduct tax at source. The company during the year 24-25 has contributed a sum of 3,50,000 to an approved electoral trust by RTGS directly to the account of the trust. You are required to compute the total income of X Limited for AY 25-26 assuming that the company has not opted for 115 BAA and BAB. So ये आपका क्वेश्चन है. चलो अभी डिस्कस करते हैं. ध्यान देना दोस्तों. X Limited
is engaged in manufacture and sale of textile goods. Its net profit for the year ending 31st March 2025 after debit and credit of the following items to profit and loss account was 125 lakhs. Advertisement expenditure includes a sum of 1.6 lakhs paid in cash. दोस्तों कैश पेमेंट है, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली पूरा का पूरा ही डिसअलाउ कर दो, इसको तो पूरा ही डिसअलाउ कर दो यार, कैश पेमेंट है। वैसे तुम 52,000 रीजनेबल एक्सपेंस है वो, तो पहले तुम बोल सकते हो कि 1,08,000 जो है वो हम डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि वो अनरीजनेबल अमाउंट है, बट 52,000 भी तो 10,000 से ज्यादा ही है ना, वो भी तो डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि कैश पेमेंट हुआ है। तो ये डिसअलाउ हो गया, इसको ऐड बैक कर दो। नेक्स्ट क्या है? रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड 1.8 lakhs टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे, उसके वजह से 1.8 lakhs का रिपेयर्स का खर्चा हुआ है। अब ये जो पार्ट्स खराब हुए थे, इसके वजह से कोई एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ रही है असेट की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम काउंट नहीं करते हैं, और इसी रीजन के वजह से इसको हम पूरा का पूरा अलाउ कर देंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंस मान के इट इज अलाउड। सो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, only an expenditure that increases the future benefits from an existing asset beyond its previously assessed standard of performance has to be added to the actual cost. Since the expenditure on replacement of worn out parts does not bring in any new asset into existence, such replacement is in the nature of current repairs, which is allowable as deductions. Since the same has been debited to profit and loss account, no adjustment is required. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है? द कंपनी यूज्ड टू इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ इट्स फिनिश स्टॉक अप टू लास्ट ईयर, बट ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI एंड एक्सक्लूडेड द इंटरेस्ट कॉस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, दिस हैज रिजल्टेड इन अ डिक्रीज ऑफ इन करंट ईयर्स प्रॉफिट बाय 10,70,000। ठीक है, कंपनी ने यू कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना मेथड चेंज किया हुआ है, तो उसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने बराबर किया है। एक्स लिमिटेड एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट कॉस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड as it has changed its accounting policies to comply with the requirement of the accounting standard, which is bona fide reason and would be followed consistently in future. The change in the method of valuation of stock being a genuine reason, no further adjustment is required as the interest cost has already been excluded and consequently the profit has been reduced. Next क्या है दोस्तों? An executive, Mr. Q, while on the business trip abroad died and the company voluntarily paid gratuity to his family amounting to ₹2 lakhs. ठीक है, ग्रेचुइटी दिया है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ये अलाउ हो जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी ऑफ 2 lakh on account of death of an executive while on a business trip is allowed as deductions. Since it is debited to profit and loss account, no further adjustment is required. चलो नेक्स्ट, capital expenditure of 1.8 lakhs incurred for the purpose of promoting family planning amongst employees debited to P&L. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है फैमिली प्लानिंग पे। पहले तो आप याद करो, फैमिली प्लानिंग का जो डिडक्शन है वो सिर्फ कंपनीज को ही मिलता है, कंपनी ने ही किया है। रेवेन्यू एक्सपेंस फुल्ली अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंस अलाउड है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे देखो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 4/5 हमने ऐड कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमॉन्ग्स्ट एम्प्लॉइज इज डिडक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years as per the first proviso to section 3619. Hence only 36,000 is deductible in current year in respect of such expenditure incurred by a company. Since 1,80,000 has been debited to profit and loss account, 1,44,000 being 4/5 of capital expenditure has to be added back. आ रहा है समझ में? चलो उसके बाद
retrenchment compensation paid to the employees of one of the unit of the company which is being closed. ठीक है, रिट्रेंचमेंट किया है, कंपनी का एक यूनिट क्लोज हुआ है इसीलिए, तो इट इज अ अलावेबल एक्सपेंडिचर, तो डेबिट हो चुका है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे आपको रिट्रेंचमेंट के ऊपर नोट दी गई है। चलो उसके बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, 4 लाख being the amount waived by cooperative bank out of the principal and 1 lakh being the amount waived by bank on arrears of interest respectively in one time settlement. The loan was obtained for meeting working capital requirement 4 years back. लोन लिया था 4 लाख का वर्किंग कैपिटल के लिए और 1 लाख रुपया जो है उस पर इंटरेस्ट था जो हमने पे नहीं किया है वो वेव कर दिया है बैंक ने। अब देखो 4 लाख वर्किंग कैपिटल के लिए लिया, मतलब ये सारे खर्चे जो अपन ने किए होंगे कहने से वो तो पीएनएल में डेबिट हुए रहेंगे, तो 4 लाख जो वेव हुआ है वो तो अपन इनकम मान लेंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए था। और 1 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा अपना ये लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो तो अपने को माइनस करने मिला ही नहीं होगा ना, पेमेंट बेसिस पे माइनस करने मिलता है 43B में, अपन ने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो अपन क्या करेंगे, अब अपन ने माइनस नहीं किया है तो अपन क्या करेंगे, इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों, अरे पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट क्यों करें। बट जबकि ये 4 लाख रुपया तो इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंस ऑलरेडी आ चुका होगा तो इसीलिए उसको अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे अगर बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट का वेवियर हो रहा है इस पे अपने को टैक्स देना पड़ेगा, ऑलरेडी क्रेडिटेड है तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इंटरेस्ट जो क्रेडिटेड होगा, वेवियर ऑफ इंटरेस्ट, वो लेस करेंगे क्योंकि इस पे नहीं देना पड़ेगा टैक्स। क्यों नहीं देना पड़ेगा अपने को, अरे भाई अभी पे नहीं हुआ है ना, पे हो जाता तो अपन पीएनएल में डेबिट करते हैं, अभी तो सिर्फ वेव हो चुका है, तो जब डेबिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट करने क्यों दे, क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया इसीलिए लेस कर रहे हैं, क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया इसीलिए क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, contribution towards employees pension scheme notified by central government under section 80 CCD for a sum of 3 lakhs calculated at 12% of basic salary। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल पेंशन स्कीम, अब वो अलाउड है मैक्सिमम अप टू 14% और कंट्रीब्यूशन हुआ है सिर्फ 12%, तो एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगा, अलाउड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 14% लिमिट है। नेक्स्ट, मार्क टू मार्केट लॉसेस अमाउंटिंग टू 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेटल इन May 2025 विद अ गेन ऑफ 1 लाख। इसका मतलब क्या कि अब ये मार्क टू मार्केट लॉसेस है ना वो अलाउड नहीं होते हैं। मार्क टू मार्केट लॉसेस आपको अलाउड नहीं होते हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेस अलाउड तभी होते हैं जब किसी भी ICDS में मेंशन हो, नहीं तो मार्क टू मार्केट लॉस अलाउड नहीं है। फिर क्या आ रहा है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन वाज 4 लाख, एक्चुअल ग्रेचुइटी पेड इज ओनली 2.75 lakhs। द ग्रेचुइटी पेड टू मिस्टर क्यू इज डेबिटेड सेपरेटली एंड नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन। ठीक है, तो ये अलग से 2.7 lakhs का अपन ने एक्चुअल ग्रेचुइटी पेमेंट किया है, बट अपन ने प्रोविजन बना के रखा था 4 लाख का, तो अपने को माइनस करने सिर्फ 2.75 लाख मिलेगा, प्रोविजन नहीं मिलता है रे माइनस करने। हाँ, बट अगर तुम अलग से एक अकाउंट बना देते ग्रेचुइटी अकाउंट और उसमें पैसा डिपॉजिट कर देते तो आपको मिलता, बट अभी नहीं मिलेगा दोस्तों, अभी नहीं मिलेगा माइनस करने, तो जो एक्स्ट्रा अपन ने किया हुआ है वो एड बैक हो जाएगा 1.25 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। अभी the company has obtained a loan of 4 lakh from ABC Private Limited in which it holds 16% voting rights. The accumulated profits of ABC Private Limited on the date of receipt of loan was 1 lakh rupees। एक कंपनी है जिसमें आपका 10% से ज्यादा होल्डिंग है, वो कंपनी से आपने लिया है 4 लाख का लोन। कुछ याद करो, 222E करके आपने सेक्शन पढ़ा था अदर सोर्स में, this is considered as a deemed dividend under section 222C 222E और deemed dividend माना जाएगा to the extent of accumulated profits। तो accumulated profits 1 लाख है तो 1 लाख अदर सोर्स में टैक्सेबल होना चाहिए। देखो हाँ ये रहा 1 लाख अदर सोर्स में टैक्सेबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, द कंपनी हैज गिवन iPhone मोबाइल सेट
to 5 distributors as incentive costing 60,000 each on 20th 10/2024 on occasion of Diwali. The accountant of the company debited the same amount to business promotion expenses being business expenditure and did not deduct TDS. अब आप याद करो 194R करके एक सेक्शन था, 194R मैंने आपको कैसे याद रखवाया था, याद है? रू बाबा करके याद रखवाया था कि अगर कोई भी परक्विजिट दिया जाता है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कोई भी परक्विजिट अगर दिया जाता है और उसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है तो उस पर TDS काटना पड़ता है. नहीं काटा है TDS, यहाँ पे नहीं काटा है तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ. डिसअलाउ कितना डिसअलाउ होगा? 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 30. सो ये देखो, हाँ ये रहा 30,000 हमने डिसअलाउ कर दिया. 60,000 5 डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीप्लाई बाय 5 into 30%. The company during the year 24-25 has contributed a sum of 3,50,000 to an approved electoral trust by RTGS. इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा दिया कंपनी ने, क्या हो जाएगा? अरे GGB में डिडक्शन मिल जाएगा कंपनी को, तो 3,50,000. सो ये कंपनी का फाइनल इनकम आ चुका. सो मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म होता है. अच्छा, कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देती और कोई और पर्सन डोनेट करता तो उसको 80GG C में मिलता है डिडक्शन, इधर 80GGB में मिलता है डिडक्शन. कंपनी को GGB में मिलता है, अदर पर्सन को GGC में मिलता है. तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हुआ. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीड करते अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10. The statement of profit and loss account of Vividsu Limited engaged in manufacturing activity for the year ended 31st March 25 exhibits a net profit of 180 lakhs after debiting and crediting of following items. Interest of 24 lakhs relating to 24-25 which is settled by issuing 8% debentures of 100 each in August 2025. थोड़ी देर पहले ही ऐसा एडजस्टमेंट अपन ने देखा था. Income tax assessment of 23-24 was completed in September 2024 with a tax demand of 5,80,000 which included surcharge of 50,700 and cess of 22,308. The entire sum has been duly paid. Similar adjustment थोड़ी देर पहले आ गया. Provision for gratuity based on actual valuation is 180. Expenditure incurred towards foreign travel of directors 6.5 lakhs to explore opening of a branch in a foreign country to market its products in the said foreign country. Paid 82,000 for purchase of raw material on 26 Jan 2025 by making payment in cash to a supplier in a single day. Paid 11 lakhs to STINC of Japan for online digital advertisement. STINC has no PE in India. No tax was deducted at source, nor was equalization levy paid on the said amount. Incurred 4.6 lakhs on activities relating to CSR as required under section 135 of the Companies Act 2013. Sold a vacant land to its wholly owned subsidiary Petal Private Limited, Mumbai. The long-term capital gain 18 lakh is credited to statement of P&L account. Paid 2.2 lakh to a university as a donation to be used for research in social science approved under section 35. Out of this, 1.2 lakhs was paid through net banking and balance by cash. Interim dividend distributed during the year is 65 lakhs. Contributed 60 lakhs towards employees pension scheme. Notified by central government under section 80 CCD. Calculated at the rate of 15% of the aggregate of the salary and dearness allowance payable to the employees as per the terms of employment. Depreciation 36 lakhs. 36 lakhs by way of a dividend received from a night PNT of Singapore, PTE of Singapore, in which Vividsu Private Limited holds 28% voting power. Paid 6 lakhs at donation to a recognized political party by way of account pay cross check. Normal depreciation is 62, additional depreciation is 24,
brought forward unabsorbed depreciation out of normal depreciation of a year 20 to 23 is 14 lakhs. Actual gratuity paid is 105 lakhs is debited to the provision for gratuity account. You are required to compute total income and tax liability of Vividsu with brief reasons of the treatment of each item. Vividsu Limited has opted to pay tax as per section 115 BAA के हिसाब से अभी कंपनी जो है वो टैक्स भरने वाली है. तो अब अपने को उसका डिस्कशन करना है कि क्या होना चाहिए. ध्यान देना दोस्तों. सो अब ध्यान देना. The statement of profit and loss account of Vividsu Limited engaged in manufacturing activity for the year ended 31st March 25 exhibits a net profit of 1,80,000 after debiting and crediting the following items. याद रखना अपने को 115 BAA के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करना है. 24 lakhs दिया गया है, इंटरेस्ट के बदले में डिवेंचर्स दे दिए, तो ये तो ऐड बैक हो जाएगा ना. तो पहले तो ये ऐड बैक कर दो. ये देखो 24 lakhs ऐड बैक हो गया. 24 lakhs क्या हो जाएगा? ऐड बैक पहले तो. चलो फिर इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ है 5,80,000, उसमें सरचार्ज एंड सेस इंक्लूडेड है, तो 5,80,000 पूरा का पूरा ये भी ऐड बैक हो जाएगा. ये भी क्या हो जाएगा? ऐड बैक. तो इसको भी ऐड कर दो 580 को. फिर उसके बाद ग्रेचुइटी का पॉइंट देखो, ये प्रोविजन बनाया है 180 का अपन ने, और फिर है ना लास्ट में एक पॉइंट दिया था कि एक्चुअल ग्रेचुइटी 105 lakhs अपन ने पे की है, जो अपन ने ग्रेचुइटी का जो प्रोविजन अकाउंट है उसमें डेबिट कर दिया है. तो आपको प्रोविजन तो अलाउड नहीं है बट एक्चुअल पेमेंट अलाउड है, तो आपको 180 ऐड बैक करना पड़ेगा पूरा का पूरा, और 105 आप माइनस कर दो. तो नेट इफेक्ट डायरेक्टली दे सकते हो यहां पे. ये देखो 75 lakhs अपन ने ऐड कर दिया. 75 lakhs क्या कर दिया अपन ने? ऐड. फिर उसके बाद आ रहा है एक्सपेंसेस जो डायरेक्टर के हुए हैं फॉरेन ट्रैवल के ऊपर फॉर ओपनिंग अ ब्रांच, तो वो अलावेबल है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, माइनस कर सकते हो. 82,000 आपने कैश पेमेंट किया हुआ है, कैश पेमेंट, कैश, बट 26 जनवरी को किया है, छुट्टी के दिन किया है दोस्तों, तो भी ये डिसअलाउ हो जाएगा, तो भी ये ऐड बैक हो जाएगा. छुट्टी के दिन भी अगर आप कैश पेमेंट करोगे 10,000 के ऊपर तो गया ऐड बैक. सो ये देखो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस जो थे वो उसका कोई इफेक्ट नहीं, और ये रॉ मटेरियल देखो यहाँ पे ऐड बैक हो गया. फिर उसके बाद जापान में जो ST INC है, थोड़ी देर पहले जापा लिमिटेड था ना वो, तो उधर अपन ने 11 lakhs पे किया है ST INC को. तो ये इसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं डिडक्ट किया, ये भी सारा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा. थोड़ी देर पहले ही ऐसा एडजस्टमेंट आया था. सो यहाँ पे देखो 11 lakhs पूरा का पूरा क्या कर दिया है अपन ने? ऐड बैक. 11 lakhs पूरा ऐड बैक हो गया है. उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? CSR एक्सपेंसेस हुए हैं 4.6 के, तो इसको भी आप ऐड कर दो 4.6. आपने सब्सिडरी कंपनी को 18 लाख रुपए में 18 लाख का एक मतलब 18 लाख का गेन आया और एक लैंड ट्रांसफर किया है. अब सब्सिडरी को जब आप करोगे ट्रांसफर विच इज होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, कहने से उसमें कैपिटल गेन्स थोड़ी आता है. ट्रांसफर ऑफ असेट बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी एंड सब्सिडरी टू होल्डिंग, ट्राई टू रिकलेक्ट, इट इज नॉट टैक्सेबल. 100% होल्डिंग कंपनी के पास होना चाहिए, एंड ट्रांसफर ई कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए. तो ये कहाँ पे मतलब ये वाली कंडीशन तुम देखो तो यहाँ पे टैक्स ही नहीं आना चाहिए. तो 18 लाख हटाओ, आपने ऑलरेडी टैक्स कर दिया है, तो ये 18 लाख को अपने को लेस करना पड़ेगा. ये देखो यहाँ पे लेस कर दिया, बराबर. चलो उसके बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट? हाँ, पेड 2.2 लाख टू अ यूनिवर्सिटी एज अ डोनेशन टू बी यूज्ड फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35. Out of this 1.2 lakh was paid through a net banking and balance by cash. दोस्तों आप याद करोगे तो 115 BAA में आपको ये जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो सेक्शन 35 में, वो अलाउड नहीं होता है, तो ये ऐड बैक हो जाएगा. देख लेते एक बार, ये देखो ऐड बैक हो गया. फिर इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट हुआ है 65 lakhs, ये थोड़ी बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ऐड बैक करो इसको भी. फिर
कंट्रीब्यूशन हुआ है इन एनपीएस 15% कंट्रीब्यूट किया है, मैक्सिमम जो अलाउड होता है वो है 14%, तो 1% ऐड बैक करना पड़ेगा, 1% ऐड बैक करो, ये देखो 1% यहाँ पे ऐड बैक हुआ है। आ रहा है चीजें समझ में, ये अमेंडमेंट हुआ है 1% वाला, ये 14% जो अलाउड है वो। डिप्रीसिएशन 36 लैक्स है, वो ऐड बैक कर दो, 36 लैक्स ऐड बैक। फिर क्या दिया हुआ है, 36 लैक्स डिविडेंड मिला है फॉरेन कंपनी से, तो इसमें 36 लैक्स मिला है ना, तो ये 36 लैक्स अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। प्लस आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो आपको माइनस करने भी मिलेगा, बट मैक्सिमम 36 लैक्स ही मिलेगा। एटीएम में आपको डिडक्शन मिलेगा, तो ये देखो बिजनेस में से 36 लैक्स हटा दो, अदर सोर्स में 36 लैक्स को टैक्सेबल करो, और आपने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो तो 65 है, बट आपको डिडक्शन मिलेगा 36 का, तो उसको लेस कर दो 36 लैक्स। एटीएम का डिडक्शन, एटीएम मिलता है 115BAA में। फिर 6 लाख रुपया डोनेशन मिला, पॉलिटिकल पार्टी से डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, तो इसको ऐड कर दो इधर, तो पहले पीएनएल में अलाउड नहीं है। और फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा ये सब में, बिकॉज यू आर अंडर 115BAA। 115BAA में 80GB नहीं मिलता। उसके बाद नॉर्मल माइनस करो, एडिशनल माइनस करो। ब्रॉड फॉरवर्ड जो डेप्री है वो नॉर्मल ही है, डेप्री नॉर्मल दिया ही हुआ है तो वही माइनस होगा। अगर एडिशनल दिया होता ना ब्रॉड फॉरवर्ड तो माइनस नहीं होता, क्योंकि करंट ईयर में हम बीएए में जा रहे हैं, और जब आप बीएए में जाओगे तो आपको करंट ईयर में एडिशनल नहीं मिलेगा, करंट ईयर के एडिशनल नहीं मिलेगा। सो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा, और पास्ट ईयर का एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो अनएब्सॉर्ब डेप्री होगा वो भी नहीं मिलेगा। सो ये देखो आप इधर माइनस करो, डेप्रिसिएशन नॉर्मल, एडिशनल नहीं मिलता 115BAA में। और जो पास्ट ईयर्स का एडिशनल डेप्री जो अनएब्सॉर्ब बन चुका था वो अगर करंट ईयर में आप सेट ऑफ करना चाहो तो वो भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू आर अंडर 115BAA तो जो भी आप लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलते 115BAA में, उसके वजह से जो लॉस आता है पास्ट ईयर का उसको भी इग्नोर करना होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका। और 115BAA के अंदर आप टैक्स याद करोगे तो 22% लगता है, सरचार्ज कंपलसरी सरचार्ज 10% एंड HEC आपको लगता है 4%। तो ये आपका फाइनल टैक्स हो गया दोस्तों, फाइनल टैक्स। अच्छा क्वेश्चन है 115BAA पे, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स है इधर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रीड करना स्टार्ट करता हूं। पहले पूरा क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। शीतल लिमिटेड is a listed company located in Mumbai. It is engaged in multiple activities at different locations. Books of accounts are maintained by each unit separately. The head office maintains books relating to common transactions. All the accounts are consolidated and the return of income is filed at Mumbai. The following information is furnished unit wise for the year ended 31st March 2025. Chemical manufacturing unit, which is at Jaipur. The company has reported a profit of 300 lakhs in the books of accounts of the said business unit. It entered into an agreement for use of know-how owned by the renowned scientist. The amount of royalty paid during the previous year 24-25 was 40 lakhs. The company deducted tax at source on the amounts paid up to November 2024 and omitted to deduct tax at source on royalty of 10 lakhs due for the period from November 24 to March 25. कंपनी ने TDS नहीं काटा है. The payee admitted the royalty income fully, paid tax and filed his return of income before the due date specified in section 139(1). The company paid 33,60,000 being 15% of basic salary plus dearness allowance of employees to a notified pension scheme
and the amount so paid is debited as expenditure in the books of accounts. फिर उसके बाद furniture manufacturing unit Pune. The company has manufacturing unit at Pune. It reports a net profit of 90 lakhs as per the books of accounts of the unit. It bought a trademark from Mr. Yellow for 25 lakhs on 1/6/2024, which is charged as expenditure in books of accounts. The unit paid 3 lakh as interest on loan taken from a non-resident Indian. The tax was deducted at source in the month of March, but it was remitted only on 6th May 2025. The company paid 7 lakhs, being the amount of income tax payable by the employees on non-monetary perquisites provided by the company. This amount is debited in the books of account as expenditure. Fertilizer producing unit Narmada. The company established a fertilizer producing unit in Narmada, Gujarat, which became operational in July 2024. It has acquired a land for 1 crore and put up a building of 2.5 crores and installed a new plant and machinery for 3 crores. The net profit as per the books of accounts is 220 lakhs after deducting depreciation on a building of 25 lakhs and plant and machinery 45 lakhs. Warehousing facility for storage of edible oil at Delhi. It established a warehousing facility for storage of edible oil from 1/8/2024. It made the investment such as cost of land 2 crores, building 3 crores and plant and machinery 5 crores. The net profit as per books of accounts without deducting depreciation was 70 lakhs. Additional information. The company mobilized capital during the previous year 24-25 by issue of public shares. The application money was kept in bank pending allotment of the shares. The interest income from the said deposit of 3,20,000 is credited to general reserve account. The company declared interim dividend at the rate of 10% of share capital, being 40 lakhs in December 2024. It has 27% shareholding in ABC Inc., New York, from whom it received 56 lakhs as dividend in Feb 2025. Both dividend received and paid were credited and debited respectively in the consolidated statement of profit and loss. The total turnover of the company for the year 22-23 was 390 crores and for the financial year 23-24 was 405 crores. Last year का turnover 405 और उसके पहले का turnover 390 crores था. The company has a MAT credit of 20 lakhs for the assessment year 16-17 of assessment year 16-17. The book profit of the company is 520 lakhs in current year. Compute total income of the company and optimum income tax liability for the year 25-26. Assume company has not yet opted for concessional tax regime. अभी तक opt नहीं किया concessional tax regime में. Your answer must give reasons for the treatment of each item given above and also for the tax liability. ठीक है. अब देखो, अब एक पॉइंट पे अपन डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन दिखाता जाऊंगा एक पॉइंट के ऊपर. सो अब ध्यान देना फ्रेंड्स. शीतल लिमिटेड is a listed company located in Mumbai. It is engaged in multiple activities at different locations. Books of accounts are maintained by each unit separately. The head office maintains books relating to common transaction. All the accounts are consolidated and return of income is filed at Mumbai. Following information is furnished unit wise for the year ended 31st March 25. Chemical manufacturing unit. तो अब इसमें क्या दिया है? The company has reported a net profit of 300 lakhs in the books of accounts of the said business unit. It entered into an agreement for use of know-how owned by the renowned scientist, and the amount of royalty paid during the year was 40 lakhs. Total 40 lakhs royalty था जो अपने को इसको पे करना था. अब क्या हुआ कि 10 लाख का रॉयल्टी ऐसा था
जिसपे अपन ने टीडीएस नहीं काटा। अब अगर 10 लाख का रॉयल्टी ऐसा है जिसपे अपन ने टीडीएस नहीं काटा है, तो ट्राई टू रिकलेक्ट, देयर इज वन सेक्शन 40A करके। 40A में क्या लिखा था कि अगर आप पेमेंट करते हो और अगर पेमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहा है या इंडिया में एनआर या फॉरेन कंपनी को जा रहा है और अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एंड अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करोगे दोस्तों तो 30% इज डिसअलाउड, 30% इज डिसअलाउड, 70% इज अलाउड। अब यहां पे साइंटिस्ट को पेमेंट हुआ है 10 लाख का, तो अभी कुछ नहीं दिया है तो हम इंडिया में ही पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो चुका है, इधर 3 लाख रुपीस डिसअलाउ हो जाएगा, 10 लाख का 30% 3 लाख डिसअलाउ हो जाएगा, तो 3 लाख रुपीस आपको ऐड करना पड़ेगा। बट अब एक डाउट आएगा कि सर 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 क्वेश्चन के अंदर और एक डेटा दिया है क्या, कि हमने तो टीडीएस नहीं काटा, हमने तो पेमेंट करते वक्त टीडीएस नहीं काटा है, लेकिन पेई जो है उसने अपने इनकम में यही रॉयल्टी को इंक्लूड कर दिया है, उस पर टैक्स भी भर दिया और उसने रिटर्न भी फाइल कर दिया है। तो हमने तो ऐसा पढ़ा था 40A के अंदर कि अगर पेई जो है वो अपने इनकम में इनकम को इंक्लूड कर लेता है जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, टैक्स भर देता है और रिटर्न फाइल कर देता है, तो पेयर जो है उसको तो सारा खर्चा माइनस करने मिल जाता है, उसको तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। आप राइट हो दोस्तों, लेकिन तुम समझो पेई जो है, पेई वो जिस दिन रिटर्न फाइल करता है ना, जिस दिन रिटर्न फाइल करता है, हम समझते हैं कि पेयर ने उस दिन टीडीएस काट के डिपॉजिट किया है, तो वो जो 30% का डिडक्शन है ना, वो पेयर को नेक्स्ट ईयर मिलता है, वो चीज ध्यान में रखना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 लाख की रॉयल्टी है इस पे हमें 3 लाख रुपीस डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो सोल्यूशन में जो केमिकल यूनिट है उसका यहां पे प्रॉफिट लिखा हुआ है 300 लाख, और रॉयल्टी देखो क्या किया है, डिसअलाउ कितना, 3 लाख रुपीस का। और फिर लिखा भी है कि वो जो 30% है वो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। फिर देखो द कंपनी पेड 33,60,000 being 15% of basic salary plus dearness allowance in terms of employees in a notified pension scheme, and the amount so paid is debited to income and expenditure account। चलो इसका मतलब क्या, अब आप याद करो एक सेक्शन था 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4A करके, क्लॉज नंबर 4A क्या था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम और नोटिफाइड पेंशन स्कीम। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम आपको माइनस करने देंगे, बट आप थोड़ा सा याद करोगे दोस्तों, वहां पे एक लिमिट है और वो लिमिट अमेंड हुई है। पहले वो लिमिट थी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, उतना मैक्सिमम हम माइनस करने देंगे, और अब वही लिमिट हो चुकी है 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। तो यहां पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वो तो 15% हुआ है, तो 14% तक ही मैक्सिमम अलाउड होगा, तो 1% हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिसअलाउ। सो ये देखो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकाउंट of employee under pension scheme as referred in 80CCD would be allowed as a deduction while computing business income only to the extent of 14%. Therefore 2,24,000 representing excess, that is 1% जो अमाउंट है वो हम डिसअलाउ कर रहे हैं। तो अब ये दो चीज़ें ऐड हो जाएगी और केमिकल यूनिट जो है जयपुर, उसका ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पुणे। द कंपनी हैज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पुणे। It reports a net profit of 90 lakhs as per books of accounts of the unit. It bought a trademark from Mr. Yellow for 25 lakhs on 1/6/2024, which is charged as expenditure in books of accounts. क्या किया ये कंपनी ने, येलो से ट्रेडमार्क खरीदा और वो ट्रेडमार्क पूरा का पूरा P&L में डेबिट कर दिया है। अब दोस्तों ट्रेडमार्क एक इनटैंजिबल एसेट है, तो इस पे तो अपने को डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका प्रॉफिट लेंगे 90 लैक्स, 25 लैक्स उसमें हम ऐड कर देंगे 25। बट दोस्तों 25 लैक्स का डेप्रीसिएशन जो है
वो हम लेस करेंगे, और इनटेंजिबल पे आप याद करो 25% रेट होता है डिप्रीसिएशन का। सो ये देखो यहाँ पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रॉफिट आ गया, ट्रेडमार्क हमने यहाँ पे पूरा ऐड कर दिया ट्रेडमार्क, और यहाँ पे देखो नीचे डेप्रीसिएशन ऑन ट्रेडमार्क 25% लेस कर दिया है। तो ये तो ट्रेडमार्क का एडजस्टमेंट हो गया। और क्या दिया हुआ है, द यूनिट पेड 3 लाख एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआर को 3 लाख पे किया है एज इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन लिया था और 3 लाख पे हुआ है। द टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स इन मार्च, मार्च में टैक्स डिडक्ट हो चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर में टैक्स डिडक्ट हो चुका है। अब मार्च का टैक्स आपको देना कब चाहिए था, 30th अप्रैल को आपने डिपॉजिट किया है 6 मई को, बट ठीक है दोस्तों, आपने रिटर्न फाइलिंग के पहले अगर डिपॉजिट कर दिया है, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट कर दिया है ना तो चलेगा। तो रिटर्न फाइलिंग के पहले अगर डिपॉजिट हो चुका है तो चलेगा, तो ये एक्सपेंस तो अलाउ होना चाहिए, तो डिसअलाउंस में कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए यहां पे देखो नील नील। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, द कंपनी पेड 7 lakhs बीइंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉइज ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। दिस अमाउंट इज डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एक्सपेंडिचर। सो कंपनी ने 7 lakhs क्या पे किया है, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स का पेमेंट किया हुआ है। अब आप याद करोगे तो एज पर सेक्शन 40A5 के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो भी आप टैक्स पे करोगे ना नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स इज डिसअलाउड, वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो माइनस करने नहीं मिलेगा। तो इसी रीजन के वजह से देखो सोल्यूशन में 7 का 7 लाख क्या हो जाता है, डिसअलाउ। और यही अमाउंट जो डिसअलाउ होता है वो एम्प्लॉई के हाथ में, याद करोगे दोस्तों, तो एग्जम्प्ट हो जाता है। एम्प्लॉई के हाथ में यही अमाउंट क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट। तो वो चीज ध्यान में रखना, एम्प्लॉई के हाथ में वो एग्जम्प्ट है। सो ये तो आपका सेकेंड जो यूनिट था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फर्नीचर, तो वो यहां पे कंप्लीट होता है। अब फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट नर्मदा, बस इधर अब थोड़ा सा ध्यान देना। द कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट इन नर्मदा गुजरात विच बिकेम ऑपरेशनल इन जुलाई 2024। अब आप याद करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर जो है ये 35AD के अंदर कहने से एक स्पेसिफाइड बिजनेस बन जाता है। 35AD के अंदर क्या बन जाता है, स्पेसिफाइड बिजनेस बन जाता है। तो ये एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, एंड स्पेसिफाइड बिजनेस में व्हाट एडवांटेज यू गेट, तो ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर विच यू विल इनकर यू कैन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप पीएनएल में क्या कर सकते हो, डेबिट, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अब देखो, the company established a fertilizer producing unit in Narmada, Gujarat, which became operational in July 2024. It has acquired a land for 1 crore and put up a building of 2.5 crores and installed a new plant and machinery for 3 crores. The net profit as per books of accounts of the unit is 220 lakhs. After deducting depreciation on building of 25 lakhs and plant and machinery of 45 lakhs. अपन ने क्या किया यहाँ पे, मतलब कंपनी ने क्या किया है कि वो लोग ने डेप्री माइनस कर दिया है। तो डेप्री तो क्यों माइनस किया यार, तुम्हें तो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने मिल जाएगा। तो अब देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट जो है वो है 220 lakhs। पहले तो अपन ये डेप्री को ऐड कर दे, डेप्री तो मिलना ही नहीं चाहिए, पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करो तो डेप्री ऐड हो जाएगा। और उसके बाद बिल्डिंग की कॉस्ट पूरी माइनस कर दो और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट पूरी माइनस कर दो, तो आप देखोगे तो यहां पे आप लोगों को आएगा लॉस। ये देखो, नेट प्रॉफिट फ्रॉम फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट नर्मदा 2 करोड़ 20 lakhs आपने लिया, डेप्री ऐड कर दिया और फिर आपने लेस कर दिया आपके जो 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हुए थे, एक बिल्डिंग और एक प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको इधर लॉस आ गया। अब लॉस जो आता है ना फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के ही सामने।
तो इसीलिए इसको इनर कॉलम में ही लिख दिया है, आउटर कॉलम में जाने नहीं दिया है। तो पहले वाले यूनिट का प्रॉफिट आउटर कॉलम में आ गया, दूसरे वाले का आ गया, तीसरे में लॉस आ रहा है, बट दिस लॉस यू कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम, तो इसीलिए उसको इनर कॉलम में ही रखा है। एंड लास्ट जो बिजनेस है वो कौन सा है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल्स। गलती मत करना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल इज नॉट अ 35 एडी बिजनेस, दैट इज नॉट अ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो वो 35 एडी में कवर्ड नहीं है, एडिबल ऑयल्स कवर्ड नहीं है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड स्टोरेज ऑफ शुगर कवर्ड है, वहां पे एडिबल ऑयल्स कवर्ड नहीं है। इट एस्टैब्लिश्ड अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल on 1/8/24. It made investments such as cost of land, building and plant and machinery. The net profit as per books of accounts before deducting depreciation was 70 lakhs. 70 lakhs का बुक प्रॉफिट आ रहा है, तो अभी बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो वो दो चीज़ें डेप्रीसिएशन माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये देखो प्रॉफिट 70 lakhs और बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन, तो ये टोटल डेप्री। तो इधर लॉस आया, दिस लॉस यू कैन सेट ऑफ, दिस लॉस यू कैन सेट ऑफ, बिकॉज दिस इज योर नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस नॉर्मल बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब और एक पॉइंट दिया हुआ है, अब ये पॉइंट बराबर से समझना। द कंपनी मोबिलाइज्ड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 24-25 बाय इशू ऑफ पब्लिक शेयर्स. The application money was kept in a bank pending allotment of shares. The interest income from the said deposit of 3,20,000 is credited to general reserve. हुआ क्या, कंपनी ने पब्लिक इश्यू किया तो शेयर एप्लीकेशन मनी आया। अब शेयर एप्लीकेशन मनी जो बैंक में पड़ा था वहां से इंटरेस्ट आया है 3,20,000 का। तो अब दोस्तों ये 3,20,000 का जो इंटरेस्ट है ना, उसका हमें क्या करना रहता है। तो एक केस लॉ है CIT वर्सेस श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड करके। ये केस लॉ में उन्होंने क्या डिसीजन दिया था कि आपको जो भी पैसा आता है कहां से, इंटरेस्ट इनकम, जब भी आप शेयर एप्लीकेशन मनी बैंक में रखोगे तो इसको आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस के सामने एडजस्ट करना पड़ेगा। सो देखो, द इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज नॉट लायबल टू बी टैक्स्ड एज द डिपॉजिट वाज नॉट for making additional income but to comply with a statutory requirement. The interest accrued on such deposit is merely incidental and the interest is eligible for set off against share issue expenses. तो इसको आप शेयर इशू एक्सपेंसेस के उधर क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट आ रहा है यहां पे डिविडेंड का पॉइंट। आपको डिविडेंड मिला है एक फॉरेन कंपनी से 56 lakhs का, प्लस आपने आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 40 lakhs का। तो अब 56 lakhs का जो आपको डिविडेंड मिला वो आपकी अदर सोर्स में इनकम हो जाएगी, और जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40 lakhs का डिविडेंड वो आपको ATM सेक्शन, याद करो ATM, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ATM जो सेक्शन है उसमें आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो फाइनल इनकम जो आपकी आ गई, फाइनल इनकम वो आ गई 4,01,99,000। इस पे अब आप 25% टैक्स लगाओ। क्यों? क्योंकि आपके लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, इसीलिए आप इस पे 25% टैक्स लगाओ। इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो फिर सरचार्ज लग जाएगा 7% और HEC लग जाएगा आपको, तो आपको टैक्स लायबिलिटी यहां पे मिल गई। टैक्स लायबिलिटी आप लोगों को यहां पे मिल जाएगी। और अब आपको क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट दिया हुआ है कि बुक प्रॉफिट जो है आपका 520 lakhs है, तो अभी बुक प्रॉफिट अगर 520 lakhs होगा तो उस पर हम 15% मैट कैलकुलेट करेंगे, और वापस से आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज आ जाएगा और HEC आ जाएगा। तो अगर आप ये टैक्स कंपेयर करोगे ये टैक्स के साथ, तो आपका यहां पे टैक्स जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो अभी आपको ये पे नहीं करना है, आपको ये वाला जो ज्यादा टैक्स आ रहा है वो पे करना है। प्लस आप क्वेश्चन रीड करो दोस्तों, आपके पास मैट का क्रेडिट पड़ा हुआ है पहले से, ये देखो मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है 20 lakhs का। तो अब आपकी जब नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ गई, नॉर्मल प्रोविजंस में आपकी जब टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ गई
तो आप क्या करो, मैट का जो क्रेडिट है वो एडजस्ट कर दो, तो आपको फाइनली 91,83,360 इतना टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर एडजस्टिंग मैट क्रेडिट। अब देखो, अब अपने को यही क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कंप्यूट टोटल इनकम एंड ऑप्टिमम इनकम टैक्स लायबिलिटी। सो अपने को उनको सजेस्ट करना है कि क्या और भी कोई वे है जहां पे अपन टैक्स देख सकते हैं कितना आ रहा है, तो आंसर इज यस फ्रेंड्स। और एक वे है, कौन सा, सेक्शन नंबर 115BAA। पढ़ो क्या लिखा है, शीतल लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 115BAA। और 115BAA में आप रेट याद करोगे तो फ्लैट रेट 22% रखता है, प्लस कंपलसरी सरचार्ज 10% और HEC 4%। तो आपका इफेक्टिव रेट हो जाता है 25.168%। 25.168% ये रेट हो जाता है, बट उधर फिर आपको याद करोगे तो 35AD का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये फ्लैट रेट हो जाएगा एंड 35AD का जो बेनिफिट है वो वहां पे आपको मिलता नहीं है, वो चीज ध्यान में रखना। तो अब आप क्या करो, तो आपका जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल, उसके देखो सारे अमाउंट्स सेम है दोस्तों, सारे अमाउंट सेम है। बट जो आपका फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट है, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट नर्मदा, वहां पे जो आपका फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट है जो 35AD में एलिजिबल था, कहने से अब आपको 35AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसका मतलब भाई डेप्रीसिएशन तो कर सकता है ना। तो आपका जो प्रॉफिट था, आप याद करोगे तो वहां पे आपका प्रॉफिट था 2,20,000 आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन, ये 220 का प्रॉफिट था, वही हम ले लेंगे क्योंकि इसमें तो अपन ने डेप्रीसिएशन का इफेक्ट दे दिया है। सो ये देखो 220, फिर आपकी 56 लाख ये इनकम हो गई, ATM का डिडक्शन माइनस करो तो आपको टोटल इनकम मिल जाएगा। और ये टोटल इनकम पे डायरेक्टली लगा दो 25.168% डायरेक्ट। इट इज कंपलसरी सरचार्ज ऑफ 10%, कंपलसरी 22% रेट है बेसिक टैक्स का, सरचार्ज कंपलसरी 10% एंड 4% HEC। सो 25.168 रेट हो गया, टैक्स लायबिलिटी आपकी इतनी आ गई। अब यहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ रही है ना, ज्यादा आ रही है, तो फिर आप नॉर्मल जो प्रोविजंस है उसी के हिसाब से टैक्स भर सकते हो। सो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फन लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, सेटअप एंड कमेंस्ड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिक्सचर ग्राइंडर on 1/4/2024 in the state of Madhya Pradesh. The net profit of the company as per the P&L account revealed a profit of 1,47,50,000 after debiting or crediting the following items. Depreciation charged during the year amounted to 34 lakhs. Lump sum consideration of 36 lakhs paid to a foreign company for obtaining designs and models of the mixture grinder on 12/12/2024. Purchased raw material at 96 lakhs from Gold Limited, in which the directors have substantial interest. The market value of the goods is 82 lakhs. Cash subsidy of 15 lakhs received from a state government on acquisition of new plant and machinery, mentioned at point C in the additional information acquired on 1/7/24, which was credited to statement of profit and loss account. Legal expenses incurred for issue of bonus shares 6 lakhs and legal expenses for right shares 8 lakhs. Short-term capital gain of 15 lakhs arising on transfer of capital asset being equity shares in a company on which STT is charged. The shares were sold on 20th June 2024. Additional info: depreciation eligible under section 32 is 36 lakhs. On 20th June 2024, the company transferred unlisted equity share for a consideration of 22 lakhs, which were acquired on 1/5/24. The cost of these shares acquired is 12 lakhs. New plant and machinery acquired on 1/7/24
was 75 lakhs and payment of rupees 10 lakhs made by bearer check and the balance by way of transfer of through RTGS. Depreciation on this machinery is not included in the depreciation given in point A above. Book profit of the companies amount to 3,20,000. Compute the total income and tax liability of Fund Limited for assessment year 25-26. बस फुल स्टॉप कर दो वहां पे, इसको हटा दो दोस्तों इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, ये हटा दो सिर्फ, एंड आगे लिख दो इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ 115 BAA एंड BAB. हाँ, असेसमेंट ईयर 25 नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अपने को करना है. सम में आपको BAB करके दिया है, लेकिन दोस्तों ये सम में अब 115 BAB नहीं आना चाहिए. उसका रीज़न है कि 115 BAB में जो आपकी लास्ट डेट थी बिजनेस स्टार्ट होने की वो थी 31 मार्च 24. इधर बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1/4/24 को, तो इसीलिए 115 BAB वाला जो पार्ट है ना सम में, उसको अपन अभी साइड में रखेंगे. अपन ऐसा ही समझेंगे कि नॉर्मल प्रोविजन में अपनी इनकम कितनी आएगी. चलो स्टार्ट करते हैं. 1,47,50,000 ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा दोस्तों. ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट. पहले तो क्या करोगे आप, डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर दोगे. चलो ऐड बैक कर दिया डेप्रीसिएशन. फिर उसके बाद जो भी आपने ये पेमेंट किया हुआ है, लम्प सम पेमेंट ऑफ 36 लाख पेड टू अ फॉरेन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग डिजाइंस एंड मॉडल्स ऑफ अ मिक्सचर ग्राइंडर ऑन 12/12, तो ये 36 लाख पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस पे तो आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा. ये एक इनटेंजिबल असेट है, तो 25% रेट होगा, और आपने 12/12 को अक्वायर किया है, इसका मतलब हाफ हो जाएगा उसका. तो ये देखो 36 लाख इंटू 25% इंटू हाफ, ये हाफ रेट आ चुका डेप्रीसिएशन का यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद परचेज रॉ मटेरियल 96 lakhs from Gold Limited, in which the directors have substantial interest. The market value is 82 lakhs. Market value is 82 lakhs. तो ये तो अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया. 40A2 करके सेक्शन है जिसमें अनरीजनेबल पेमेंट करोगे तो वो ऐड बैक हो जाएगा. सो ये देखो 14 lakhs हम ऐड बैक कर रहे हैं, अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव. उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैश सब्सिडी मिला हुआ है 15 lakhs का, और ये मशीन के लिए मिला है. मशीन के लिए अगर कोई भी सब्सिडी मिला तो वो तो मशीन के कॉस्ट में से लेस होना चाहिए ना. तो अभी पहले तो P&L में से हटाओ, इसको P&L में से हटाओ. ये देखो हटा दिया, लेस कर दिया P&L में से. और जब अपन मशीन पे कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वो मशीन की कॉस्ट में से अपने को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को अब ये वाले इतने अमाउंट के ऊपर कहने से डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करना है. लीगल एक्सपेंसेस बोनस शेयर इशू करने के लिए हुए रहेंगे तो अलाउड है. राइट शेयर तो कैपिटल बेस बढ़ाता है कंपनी का, तो ये 8 lakhs डिसअलाउ हो जाएगा. 8 lakhs डिसअलाउ. देखो बोनस शेयर वाला अलाउड है, बट राइट शेयर्स वाला एड बैक हो जाएगा. उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 15 लाख का ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट बीइंग इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी इज चार्ज. द शेयर्स आर सोल्ड ऑन 20/6/24. ठीक है, 15 लाख हटा दो, कैपिटल गेन्स हटा दो P&L में से, और इसको लेके जाओ कैपिटल गेन्स हेड के अंदर. ये देखो 15 लाख इधर टैक्सेबल हो जाएगा. इस पे टैक्स लगेगा 111A के हिसाब से. 111A में अमेंडमेंट हुआ है, 20 जून 24 को बेचा है, इसीलिए 15%. 23 जुलाई ऑनवर्ड्स वही रेट हो जाता है 20%. वही रेट हो जाता है 20%. डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज 36 lakhs. चलो 36 lakhs लेस कर दो, लेस कर दिया. फिर देखो आपने मशीनरी खरीद फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर बेचा है. 22 lakhs FVOC आया, 12 लाख कॉस्ट था, तो 10 लाख पे आपको अदर सोर्स में टैक्स लग जाएगा. कहाँ टैक्स लग जाएगा, अदर सोर्स नहीं, कैपिटल गेन्स में. 22 lakhs माइनस 12 lakhs, 10 lakhs टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन्स के अंदर. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पे. और अब प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 75 lakhs का, जिसमें से 10 लाख का पेमेंट आपने किया हुआ है थ्रू अ बेरर चेक, बाकी का RTGS. तो ये 10 लाख पे डेप्री नहीं मिलेगा, तो 65 हो गया,
15 लाख सब्सिडी मिला था, तो 15 लाख सब्सिडी माइनस करोगे तो 50 लाख हो गया। 50 लाख पे ही आपको डिप्रीसिएशन आएगा। तो ये देखो यहाँ पे 50 लाख के ऊपर आप 15% पहले तो डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, और दूसरा 50 लैक्स के ऊपर आप एडिशनल डिप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करो। 20% मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसीलिए। तो ये नॉर्मल डिप्री और ये एडिशनल डिप्रीसिएशन माइनस करो, और क्या बच गया है? कुछ बचा है? नहीं, हो गया। अब आपकी बिजनेस इनकम आ गई, कैपिटल गेन्स इनकम आ गई, अब ये टोटल इनकम आ गई। इसमें से 111A को अलग कर दो, उस पर आपको 15% टैक्स लगेगा, और बाकी सब पे आपको 25% टैक्स लगेगा। क्यों 25% लगेगा? कंपनी जो है वो करंट ईयर में ही बना है, तो कंपनी का लास्ट टू लास्ट ईयर टर्नओवर 0 विच इज लेस देन 400 करोड़, तो फिर इसीलिए कहने से 25% टैक्स आ जाएगा। इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो सरचार्ज एंड HEC ऐड कर दो, टोटल टैक्स मिल गया। अब ये तो टोटल टैक्स हो गया दोस्तों अंडर नॉर्मल प्रोविजन, पर अपने को बुक प्रॉफिट भी दिया है, तो मैट के हिसाब से 15% बुक प्रॉफिट पे टैक्स निकालो, और आपकी जो बुक प्रॉफिट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो सरचार्ज आएगा, HEC आ जाएगा। तो आप देखोगे तो आपका मैट का टैक्स ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोविजन, तो आपको मैट भरना पड़ेगा, और उसी चीज़ का फिर आपको क्रेडिट मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा टैक्स आप भर रहे हो उसका। ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये आपको हटाना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला पार्ट अभी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 115 BAB सेक्शन अभी आएगा नहीं। तो ये वाला पार्ट प्लीज़ आप हटा देना अभी के लिए। आप यहाँ तक ही रेफर करना, मैंने क्वेश्चन में भी अकॉर्डिंगली आपसे इसीलिए चेंजेस करवा दिए थे। ये क्वेश्चन में ये लाइन ऐड करवा दी है मैंने आपसे, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन रीड करते दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ SJ इंडस्ट्रीज एंगेज इन प्रोडक्शन and marketing of diversified product shows a net profit of 72 lakhs for the year ended 31st March 2025 after charge of the following items. A. Items debited to statement of profit and loss account. Depreciation as per Companies Act 24 lakhs. Interest amounting to 60,000 for short payment of advance tax paid as per section 234B relating to the assessment year 24-25. Interest and borrowing cost amounting to rupees 9,50,000 and 7 lakhs, though not meeting the criteria for recognition as a component of cost included in the cost of opening and closing inventory respectively. Expenditure of 41,000 paid in cash comprising of 22,000 directly paid to the producer of dairy farming products, and 19,000 paid towards printing and stationery to a trader. 3,50,000 paid to a contractor for carrying out repair work at a factory. TDS is not deducted. 35,000 towards expenditure for earning income from transfer of carbon credit. Contribution to electoral trust 3 lakh rupees paid by a way of a check. Expenditure toward advertising in a brochure of a political party registered under section 29A of Representation of a People's Act 40,000 rupees. Interest on term loan obtained from a cooperative bank not paid up to due date 2,60,000. Actual contribution to pension scheme is 1,50,000. Unrealized rent items credited to P&L. Unrealized rent 3,80,000 pertaining to year 21-22 and 22-23 recovered during the year in respect of a commercial property owned by the company which was sold by company on 23rd March 2025. Dividend from a specified foreign company 160. Profit of 3 lakh received from hedging contract entered into for meeting out loss in foreign currency payments towards an imported printing machinery valued at 95 lakhs installed on 15th December and put to use from the same date. Interest from bank on fixed deposit net of TDS 10% 1,35,000. Additional info. Depreciation as per income tax rules amounts to 28 lakhs exclusive of depreciation on imported printing machinery referred to in B3.
expenditure pertaining to the previous financial year allowed on due basis but paid in current year in cash on 18/1/25 35,000. Audit fee for previous year 23/24 is 75,000. TDS deducted but not paid in the relevant previous year. However, TDS was paid on 31st December 24. Income from transfer of carbon credit amounting to rupees 4 lakh included in net profit before tax. The eligible salary and dearness allowance for pension scheme referred to in section 80 CCD is 10 lakh rupees. Compute the total income of SJ Industries Limited for assessment year 25-26 as per the normal provisions of the Act. Give reasons for the treatment given to the each of the item considered in computation. Company does not want to opt for 115 BAA. हे भगवान, कितनी सारी एडजस्टमेंट्स है देखो अभी. चलो एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं. आप स्टार्ट करोगे 72 लाख से, उसके बाद जो डेप्रीसिएशन है ये हो जाएगा ऐड. चलो ये समझ में आया, डेप्रीसिएशन ऐड बैक हो जाएगा. फिर ये जो शॉर्ट पेमेंट हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, ऐड. फिर जो इंटरेस्ट अपन स्टॉक के अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे, कहने से वो अभी अपने को सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू 950 एंड 7 लाख दो नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी. तो ओपनिंग में ये 950 है वो ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग में ये जो है 7 लाख वो लेस हो जाएगा. नेट इफेक्ट भी दे सकते हो, 250 क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐड बैक कर सकते हो. फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर हुआ है 41,000 का कैश में, 22,000 डायरेक्टली पेड टू अ प्रोड्यूसर ऑफ अ डेयरी फार्म. अब आप याद करो रूल नंबर 6DD करके आपने पढ़ा था. एक दिन में पहले तो 10,000 के ऊपर आप कैश करोगे तो वो डिसअलाउ होता है, बट रूल 6DD में उसके एक्सेप्शंस थे, जहां पे अगर आप डेयरी फार्मिंग जो कर रहा है उसको पेमेंट करते हो प्रोड्यूसर को, कहने से वो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाता है. सो ये तो अलाउड हो जाएगा, इसमें कोई डिसअलाउंस नहीं आएगा. बट ये जो 19,000 है कहने से ये ऐड करना पड़ेगा आपको. 19,000 जो है वो ऐड बैक हो जाएगा. फिर 3,50,000 पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा. 30% TDS नहीं काटा इसीलिए 30% इज डिसअलाउ. फिर कार्बन क्रेडिट के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन क्रेडिट पे तो डायरेक्टली फ्लैट रेट लग जाता है. 115 BBG करके सेक्शन है वहां पे. फिर ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट को पेमेंट किया वो ऐड हो जाएगा, और इसका आपको 80 GGB में डिडक्शन भी मिल जाएगा. फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया वो भी ऐड हो जाएगा, और 80 GGB में इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. फिर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऑब्टेन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक. इंटरेस्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि पे नहीं किया है बैंक से इंटरेस्ट है. 1,50,000 एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है, और नीचे आपको पता हो तो सैलरी दी गई थी. ये देखो, ये 10 लाख की सैलरी है जो बेसिक और डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स है. अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, 10 लाख का आपको 14% दैट इज 1,40,000 मिलेगा. पेमेंट तो अपन ने किया है 150 का, तो 10,000 अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा. ऐड बैक करना पड़ेगा 10,000. फिर जो अनरियलाइज रेंट मिला है ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, तो इसको अपने को लेस करना पड़ेगा. और हाउस प्रॉपर्टी में 3,80,000, और याद करोगे तो अनरियलाइज रेंट में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलके 25A के अंदर वो टैक्सेबल हो जाता है. 25A में क्या हो जाता है, टैक्स लग जाता है. फिर ये जो फॉरेन कंपनी से अपने को पैसा मिला डिविडेंड वो भी लेस हो जाएगा, और ये अदर सोर्स में जाके टैक्स हो जाएगा. फिर जो प्रॉफिट आया है 3 लाख का ये भी लेस हो जाएगा, क्योंकि ये आपको मशीनरी के लिए प्रॉफिट हुआ है कि आपने एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था मशीनरी का, जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का लॉस हो उससे बचने के लिए. तो इससे जो भी प्रॉफिट हुआ वो मशीन के इसमें तुम्हें लेस करना पड़ता है. तो इसको मशीन की कॉस्ट में ही लेस कर देना, तो आपका 92 लाख का मशीन का कॉस्ट हो जाएगा.
और यहां पे नीचे एक पॉइंट में दिया हुआ है कि इस पे अपन ने डेप्री कैलकुलेट नहीं किया, तो इस पे कर लो, इस पे 15% डेप्री आएगा हाफ, और फिर 20% डेप्री आएगा हाफ। नॉर्मल डेप्री एंड एडिशनल डेप्री हाफ इसीलिए क्योंकि 180 डेज से कम यूज हुआ है। फिर जो बैंक से इंटरेस्ट आया 135, इसको लेस कर दो पीएनएल में से, और अदर सोर्स में जाके 1,50,000 पे टैक्स भरना, 1 लाख, क्योंकि दिस इज नेट ऑफ टीडीएस, ग्रॉसिंग अप करके टैक्स भरना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन जो है 28 लाख का, लेस करो। फिर लास्ट ईयर एक खर्चा माइनस कर दिया था ड्यू बेसिस पे, तो लास्ट ईयर जब ड्यू बेसिस पे खर्चा माइनस किया था, इट वाज विथ एन अजम्पशन के कल उठ के इसका पेमेंट अपन प्रॉपर प्रिस्क्राइब मोड से करेंगे, बट करंट ईयर में कैश भर दिया 35,000 का। 35,000 10,000 से ज्यादा है तो 40A 3A के हिसाब से इस पे टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लास्ट ईयर ऑडिट फीस थी, ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस का टीडीएस हमने इस साल भरा, तो उसमें लास्ट ईयर 70% अलाउ हुआ रहेगा, इस बार 30% और लेस कर दो, और लेस कर दो। कार्बन क्रेडिट को इधर ही रहने दो, इधर ही टैक्स करो उसको। एंड पेंशन वाला पॉइंट तो अपन ने कवर पहले ही कर लिया है। क्या मस्त समय ये देखो सब चीजें। 80 GGB के फिर डिडक्शंस लेने पड़ेंगे अपने को लास्ट में। यहाँ पे पूरा सोल्यूशन आपको दिया है और 80 GGB का फाइनली डिडक्शन ले लिया है। सो दोस्तों, ये आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के कुछ सम्स थे जो अपने को डिस्कस करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।